On this tour you've been on various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence, but media have asked. कोई शवाहिद नहीं है, अगर कोई शवाहिद हैं तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. अजे तक कोई सबूत नहीं गवर्नमेंट दे कोले कि जो पहलगाम दे विच होया है ये पाकिस्तान ने कराया हैगा. Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Pahalgam incident. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और क्रेडिबल तहकीकात की पेशकश की थी, जिसकी दुनिया ने भरपूर तायीद की. The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. We know what Pakistan's all about. They will dispatch terrorists. They will deny they did so until they're actually caught with red hands. The world needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism years after year and raise this bogey. The moment this happened, within 45 minutes or so of this happening, the terrorist attack, a group called the Resistance Front claimed credit. Including for members of some of the key organizations, the Jaish-e-Mohammed in particular, and the Lashkar-e-Taiba. The funerals were conducted, and photographs have emerged on social media showing Pakistani generals and police officers in uniform attending these funerals. Indian military ये क्लेम करती है कि उन्होंने allegedly जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को बहावलपुर में टारगेट किया. How do you respond to that? जी मैं पहले कह चुका हूँ कि जो उन्होंने टारगेट किया बहावलपुर में, मुरीद के में, मुजफ्फराबाद में, वो मसाजिद थी. आप लोग सब लोग मीडिया अगले दिन गया. क्या ये पॉसिबल है कि रात को वहाँ पे टेररिस्ट थे, टेरर कैंप्स थे, चंद घंटों बाद कि हम वो सारा वहाँ से दहशतगर्दी कर दी. मैं यही तो कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म, ऑपरेशन इनका इंटरनल इशू है. इंडियंस के जो क्लेम्स है ना, इसके मीडिया के जो क्लेम्स हैं उनको बड़ी सोच समझ के लेने की जरूरत है. बाकी जहाँ तक ये नमाज जनाजा चाहे बहावलपुर में हुई है, चाहे मुरीद के हुई है, चाहे मुजफ्फराबाद में हुई है, चाहे बाद में हुई है, चाहे अभी जो बच्चे मारे गए, ये हमारे कौम के बच्चे थे. 22 औरतें और बच्चे मारी गई हैं. ये मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा सकता हूँ. आई हैव ऑल दी पिक्चर्स ऑफ दिस पीपल हु हैव डाइड. ये आप उनके, दीज आर दी पीपल, ये हैं वो बच्चे. लुक एट देयर फेसेस. अब इनकी नमाज जनाजा पे क्या पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी? क्या पाकिस्तान की इंतजामिया नहीं जाएगी? मेरे मुतालिक मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी एक जनाजा पढ़ाने की. मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल-अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है और जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है. मेरी ज़िंदगी सबके सामने है. मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ. मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही. This man who was actually leading the prayers, whom the
High Commissioner of the Indian High Commissioner is saying that he is the brother. What is he? Their own cocoons, in their own bubble in which they believe every lie that is fed to them. India has become a disinformation, misinformation churning machine, and the only thing that can counter this is fact and reality. पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना, तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं हो। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन, उस पर सवाल नहीं पूछा जाता। सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या कर रही है, वो जख मार रहे हैं। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सरकार का फेलियर नहीं है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। और ये सिक्योरिटी लैब्स है, कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। ये पुलवामा 2 है। आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए। सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। मैं आर्मी में नौकरी की है 18 साल। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्ट उठा के आ गया। जितने भी कांड हुए ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। कैसे कश्मीर के अंदर घुसाए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं। ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। Let me now focus, my friends, on the 10th and arguably most serious issue. Someone was flashing that Karachi port had been captured. Someone else said there was a coup in Islamabad. F-16s were down, pilots had been captured. Since I am part of this media army, in the belly of the beast, so to speak, may I offer at the end of this trade back a mea culpa, an apology. I am sorry. I am sorry.